Hello students, in this lecture we are going to discuss electric potential due to an electric dipole. So what is a dipole? We already studied in chapter first that a system consists two charges of equal magnitude and opposite sign separated by a very small distance is known as a dipole. This system we called a dipole. So this is at point B the charge minus q and at point A the charge plus q separated by a small distance 2a. So this is a system called dipole. It is a dipole. Okay. So we want to calculate the electric potential due to this electric dipole at some general point r theta. So this is the point P where we want to calculate the electric potential due to this electric dipole, and the angle is theta from this dipole moment. The direction of dipole moment is from minus q to plus q. So from the direction of dipole moment it is an angle theta. So we have to calculate at some general point r theta the electric potential due to this electric dipole. So OP, this length, this point is, we consider this point as O. This OP length is equal to R, and this angle AOP is theta. This distance B to P is R1 and this distance A to P is R2. Now draw a perpendicular AM on this OP. This is the perpendicular AM on this side OP and a perpendicular BN of this OP. So then we say that OM is equal to ON because this angle theta, so this angle also is theta. OM is equal to ON. Now in triangle OMN, ट्राइंगल OMN में OMA में अगर अपन देखें क्या कह सकते हैं, इन ट्राइंगल OMA ट्राइंगल में अगर इसको कंसिडर किया जाए तो अपन कह सकते हैं OM ओपन OA इज इक्वल टू कॉस थीटा. सो OM इज इक्वल टू OA कॉस थीटा. OA का जो वैल्यू है ये, if this is the midpoint of this dipole, the whole distance is 2a, so this distance is a. तो अपन कह सकते हैं OM is equal to OA की जगह क्या पुट कर सकते हैं अपन, A cos थीटा, इक्वेशन नंबर फर्स्ट. और OM किसके बराबर है, ON के बराबर है. ये दोनों आपने परपेंडिकुलर ड्रॉ किए, इस OM एंड ON. सो ON की जगह भी अपन लिख सकते हैं ON is equals to be A cos theta. Now calculate the value of R1. This R1 value of this R1 is equal to, अपन लिख सकते हैं R1 is equal to BP and near about equal to NP is equal to OP plus ON is equal to R plus A cos थीटा. कैसे निकाला अपन, देखना ध्यान से. दिस डिस्टेंस B to P इज इक्वल टू दिस डिस्टेंस N to P. ये जो डिस्टेंस हो किसके बराबर होगा, N to P डिस्टेंस के अप्रोक्सीमेट इक्वल होगा इसके. ठीक है. सो NP को अपन कैसे डिवाइड कर सकते हैं, OP प्लस ON. OP प्लस ON. ON का वैल्यू अपन कैलकुलेट कर चुके हैं A cos थीटा और OP का जो वैल्यू वो है R. सो आपका R1 की वैल्यू आ जाएगी R प्लस A cos थीटा. इसी तरीके से R2 का वैल्यू जो है वो कैलकुलेट कर लेते हैं. R2 इज इक्वल टू AP, जो किसके इक्वल होगा, दिस AP इज इक्वल टू दिस PM और MP इज इक्वल टू, MP को कैसे डिफाइन कर सकते हैं, OP माइनस दिस ON. OP माइनस OM इज इक्वल टू R माइनस A cos थीटा. इक्वेशन नंबर 2.
ये चीज़ अगर अपन निकाल लेते हैं R1 और R2 की वैल्यू, तो आगे वाला डेरिवेशन जो है अपने लिए ईजी हो जाएगा. सो R1 हैज़ वैल्यू R प्लस ए कॉस थीटा, R2 हैज़ R माइनस ए कॉस थीटा. सो देयरफॉर पोटेंशियल एट point P due to both the charges, potential at point P due to both the charges minus Q at B and plus Q at A. So potential is V is equal to minus Q upon 4 pi epsilon naught 1 upon R1 प्लस Q 4 पाई एप्सिलॉन नॉट R2. सो ये 1 नहीं भी लिखो तो चल जाएगा. सो यहाँ से कॉमन आ जाएगा Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. रिमेनिंग अपने पास जो रहेगा 1 अपन R2 माइनस 1 अपन R1. LCM लेके इसको सॉल्व करेंगे. सो V इज इक्वल टू Q अपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. दिस इज R2 इंटू R1. तो एलसीएम जो आएगा वो आएगा आपका R2 इंटू R1. सो ऊपर जो टर्म आएगी R1 माइनस R2. ठीक है, R1 और R2 की वैल्यू अपन जानते हैं, वैल्यू पुट कर देंगे. सो Q ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. सबसे पहले R1 की वैल्यू पुट करें, R प्लस ए कॉस थीटा माइनस ऑफ R2 की वैल्यू हो जाएगी आपकी R माइनस ए कॉस थीटा. तो ये हो जाएगा माइनस ऑफ R प्लस ए कॉस थीटा ओपन R प्लस ए कॉस थीटा R माइनस ए कॉस थीटा. ट्रिग्नोमेट्रिक आइडेंटिटी लगेगी a प्लस बी इंटू ए माइनस बी इज इक्वल टू ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर. सो नेक्स्ट Q ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. R से R आपका कैंसिल हो जाएगा. यहाँ पे ये आएगा 2a कॉस थीटा ओपन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. सो Q ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. नाउ इसको अपन इस तरीके से अरेंज करके लिखते हैं. 2a को इस Q के साथ मल्टीप्लाई करते हैं. Q इंटू 2a ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट. कॉस थीटा को अलग रखते हैं, कॉस थीटा ओपन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा. Q इंटू ए इज इक्वल टू, दिस इज फॉर्मूला ऑफ डाइपोल मोमेंट P इज इक्वल टू 2AQ. sorry, either a charge and the separated distance between them is known as the dipole moment for an electric dipole. So P cos थीटा ओपन 4 पाई एप्सिलॉन नॉट को मैं K लिख देता हूँ, KP cos थीटा ओपन R स्क्वायर माइनस ए स्क्वायर कॉस स्क्वायर थीटा इज इक्वल टू V. Now consider this equation. V is equal to Kp cos theta open R square minus A square cos square theta. This is the electric potential due to an electric dipole at some general point R and theta. We make an assumption here. If this A is less than R, then electric dipole is very short and the potential is given by, make an assumption, A is less than R, then electric dipole is very short and the potential is given by V is equal to K P cos theta upon R square. This term is neglected, A square cos square theta if A is less than R. So इस टर्म को अपन नेग्लेक्ट करेंगे. सो आपका पोटेंशियल जो आएगा वो आएगा V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा ओपन R स्क्वायर. नाउ केस नंबर फर्स्ट, इफ पॉइंट P lies on the axial line, ये केस अपन पहले कर चुके हैं इलेक्ट्रिक फील्ड में कि अगर इस तरीके का अरेंजमेंट हो, दिस इज माइनस क्यू एट पॉइंट बी
दिस इज प्लस क्यू एट पॉइंट ए सेपरेटेड बाय अ डिस्टेंस 2a, और कोई पॉइंट P इसके सेंटर से r डिस्टेंस पे यहाँ पे लाई करता है, तो इस पॉइंट पे अगर अपन इलेक्ट्रिक पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं तो अब डाइपोल मोमेंट के साथ इसका जो एंगल है वो कितना है, तो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री. सो द पोटेंशियल V इज इक्वल टू, इस इक्वेशन नंबर स्टार में अपन इसको पुट करेंगे. सो थीटा इज इक्वल टू 0 डिग्री, सो कॉस 0 इज इक्वल टू 1, V इज इक्वल टू के पी अपन आर स्क्वायर. cos 0 degree is equal to 1. Then case number 2, if point P lies on the equatorial line, इक्वेटोरियल लाइन पे अगर लाई करता है पॉइंट P, तो किस तरीके का अरेंजमेंट होगा, दिस इज माइनस क्यू एट पॉइंट B, दिस इज प्लस क्यू at point A separated by a distance 2a, ये इसका सेंटर है O, और इसके इक्वेटोरियल लाइन पे अगर लाई करेगा कोई पॉइंट P, तो यहाँ पे कहीं कोई पॉइंट P है जिससे यहाँ से यहाँ की डिस्टेंस कितनी है, R है. और इस पॉइंट P पे अपन इस डाइपोल सिस्टम की वजह से पोटेंशियल कैलकुलेट करना चाहते हैं, तो थीटा अपने पास अब कितना होगा, तो थीटा इज इक्वल टू 90 डिग्री. तो इस फॉर्मूले से अपन कैलकुलेट कर सकते हैं, V इज इक्वल टू के पी कॉस थीटा अपन आर स्क्वायर. थीटा की जगह 90 पुट करेंगे, कॉस 90 कितना होता है, 0. सो पोटेंशियल एट इक्वेटोरियल लाइन फॉर अ डाइपोल इज 0. सो दिस इज द डेरिवेशन ऑफ पोटेंशियल ड्यू टू एन इलेक्ट्रिक डाइपोल एट एन जनरल पॉइंट आर थीटा. और जनरल पॉइंट पर कैलकुलेट करने के बाद आप केस फर्स्ट और केस सेकंड में axial line when P point lies on axial line and when point P lies on equatorial line, दोनों के लिए आप कैलकुलेट कर सकते हैं.